रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा अभी मार्केट में बूम कर रहे हैं. ईच एंड एवरी वन इज़ फोकसिंग ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ ओपनिंग. एंड फॉर्चुनेटली पहले कोरोना के टाइम पे ऐसा लग रहा था, पैंडमिक के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में ओपनिंग्स बहुत कम हो जाएंगे, मैन पावर के ऊपर लोगों का उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, पीपल विल गेट एंटर्ड इनटू ऑटोमाइजेशन मोड. बट touch wood, the things are going smoothly, things are going very well with this opening recruitment market, I would rather say, right? So during this time, what all things we should always keep in our mind being a recruiter, that is the key word, that is the key area which we all need to focus on. After pandemic, each and everyone got one or the either break. We should understand this basic nature of this particular pandemic. Okay, so we cannot expect from the candidate that candidate is 100% up to date. Okay, whether that candidate is a fresher, whether that candidate is experienced, whether that person is having a job loss or anything else, but you need to understand there is a break, there is a gap between the work culture and the pandemic. So we need to serve that particular mentality in a very positive way, right? The second thing is the job description. Whenever you are running a campaign for your job opening, you should be very clear and very precise towards your job description. You should not always say like ये सारी चीज़ें तो it's a by default, we can keep on changing while once that person been selected, और उनका जब hiring process complete हो जाएगा उसके बाद we can always share this all things. It's a very wrong practice, I must say this. It's really a very wrong practice, and it's a kind of a depreciation for that person. Okay, so you should be very clear with the job description. You should be very clear with the elaborated job description. And इसके साथ साथ आप कौन सी और डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल वहाँ पे आप उनके पास से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी अगर आप उनको बता सकते हो, it's fair enough. Okay, now when we talk about the job profile, job description, talent hunt हो गया, everything goes very smoothly, very fine. Now the last stage comes as a negotiation stage. Okay, so here is the very crucial part to negotiate with the person. And I heard from many of my students that they keep on saying like abhi market thoda down hai and this and that, but madam, we are not getting this sort of thing, and they are just compromising with the current salary structure, or they are just compromising with the offering. Why? Because they just want a job. So इसमें होगा क्या कि they are just getting entered into the new system by having that mentality कि अच्छा ठीक है, मार्केट जब ओपन होगा, मार्केट जब रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, विल डेफिनेटली हैव अ जॉब चेंज. ओके, सो यहाँ पे जॉब ओपनिंग तो है, बट हायरिंग एंड फायरिंग प्रोसेस इज ऑल्सो गोइंग वेरी फास्ट, राइट? और जहाँ पे भी मैन पावर रिटेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिस्टम विल नॉट ग्रो as per the as expectation. Okay, so यहाँ पे negotiation is the crucial is the key role, where I can say with what you can develop the sustainable model, you can develop the sustainable employability. Okay, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके जो ये negotiation skill के ऊपर depend होती है. So the very first thing which you can offer to the person is negotiation should always go with that person's का expectation. आप उनको ये नहीं बता सकते कि आप हमारे मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी क्राइसिस आ गई है, वी डू नॉट हैव फंड टू रेज. ओके, ये सारे आपके इंटरनल इश्यूज़ है, आपके पर्सनल इश्यूज़ है. देयर नो वन इज सच इंटरेस्टेड. द वे कैंडिडेट ऑल्सो शुड नॉट शेयर कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई कैन डू माई बेस्ट एंड अभी ये मुझे जॉब दिला दो एंड दिस एंड दैट. ओके, द पर्सनल चिट चैट, इन शॉर्ट, it's not at all allowed
ऑन द नेगोशिएशन टेबल। सो नेगोशिएशन कौन से हिसाब से हो सकता है? द फर्स्ट थिंग इज़ आप उनके करंट जो सैलरी है, करंट विड्रॉल है, उसके ऊपर आप नेगोशिएट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप उनकी जो जॉब प्रोफाइल्स है जो आप उनको ऑफ़र कर रहे हो और उनके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ ने जो उनको ऑफ़र किया हुआ है उनके ऊपर आप नेगोशिएट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट बाय हैविंग द लोकेलिटी चेंज, बाय हैविंग द एक्सपेंस चेंज एंड बाय गिविंग देम द अदर फैसिलिटीज़ विच अदर एम्प्लॉयज़ the previous employments they were not offering them. Okay, so ये सारी चीज़ें it's a loop where you can get entered into positive negotiation. Okay, apart from this आप और उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि अगर आप ये सारी चीज़ें एकदम completely fulfill कर लेते हो then will definitely give you the great promotion, will definitely give you the increment promotion and step wise आप उनको step by step आगे development दिखा सकते हो. So development, great development is very must I can से कि हर एक न्यू कमर्स जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ग्रेट प्रमोशंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. तो दिस इज़ दी बिग एरिया वेयर यू कैन एंटर एंड वेयर यू कैन नेगोशिएट वेरी नाइसली. अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक बहुत ही अच्छा की रोल जो होता है जिसको बोलते हैं हम उनको सैलरी को आप बाइफर्केट करके उनको डिविजन दे दो सो दैट दिल गेट दी एक्सेस पुल. ओके, आपको बेसिक सैलरी दिखानी है, आपको उनका जो ऑफरिंग जो है CTC जिसको बोलते हैं, CTC आपने उनको दिखाया, देन बाइफर्केशन आपने उनको दिया, देन यू कैन ऐड ऑन द इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर देयर. यू कैन ऑफर देम डिफरेंट रेन्यूमिनेशन या फिर ऑनरेरियम विच दैट पर्सन कैन गेट बाय एडिंग ऑन डिफरेंट सर्विसेज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, वो पर्सन का कुछ ऐसा एरिया है जिसमें वो बहुत सारे एरियाज़ में एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका कॉस्ट कटिंग कहीं पर डेवलप हो रहा है बाय हैविंग दैट रिसोर्स पर्सन इन द सिस्टम. तो आप उनको वो सारी ऑफरिंग्स दिखा सकते हो, आप उनको रिम्बर्समेंट पॉलिसीज दिखा सकते हो, आप उनको अलाउंसेस डिफरेंट दिखा सकते हो. इस हिसाब से अगर आप उनको बाइफर्केशन बहुत ही हैवी दिखाओगे दैट पर्सन विल डेफिनेटली सिट टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया कि हाँ मुझे बेसिक ये मिल रहा है बट अपार्ट फ्रॉम दिस द मोर आई रन द मोर आई गेट. ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड. आई एम श्योर यू वुड गेट टू नो मोर अबाउट दिस. मैं जल्दी ही एक ऐसा वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. दिस इज़ देवल जोशी. आई एम साइनिंग ऑफ.